Hello students, I am Mrs. Rekha Gupta. I am from Government PYT PG Autonomous College Durg, and today I am giving my lecture on gene therapy, that is one of the important application of biotechnology. जीन थेरेपी जो टॉपिक है ये एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी पेपर का एक टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज द यूज ऑफ जीन्स एज मेडिसिन. वह थेरेपी जहां पर हम जीन्स को मेडिसिन की तरह यूज करते हैं टू क्योर द जेनेटिक डिसऑर्डर, वह थेरेपी जीन थेरेपी कहलाती है. जीन थेरेपी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू द एग्जिस्टिंग सेल्स टू प्रिवेंट और क्योर a wide range of diseases. It is a technique for correcting defective genes, which is responsible for the disease development. तो यह एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें डिफेक्टिव जीन्स को नॉर्मल फंक्शनल जीन के द्वारा रिप्लेस कराया जाता है ताकि हम उस जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर कर सकें. एंड दिस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन्स will encode proteins and correct the deficiency that occur in genetic diseases. Okay. Now the first experiment on gene therapy occurred in September 14 in 1990 in US when Ashanti was treated for ADA SID. This ADA SID is an inherited primary immunodeficiency disease which result the weak immune system due to the deficiency of ADA. ADA, that is adenosine deaminase. Okay, because it is necessary for the T cell survival. Now this is the principle of gene therapy. Here we can see that therapeutic transgenes can be introduced in the DNA where the defective gene is there, and these defective genes are replaced by using this therapeutic genes for the production of the normal functional protein. Okay, so this is the general principle of the gene therapy. Now this is the history and development of gene therapy. In 1960, the concept of gene therapy was first introduced. In 1970, Friedman and Robin, author of a paper titled Gene Therapy for Human Genetic Disease, cite the first attempt to perform gene therapy. And in 1990, the first experiment or approved gene therapy experiment was performed on a 4-year-old girl named Ashanti De Silva, जिसकी अभी हमने बात की. Now the types of gene therapy. There are mainly two types of gene therapy on the basis of the type of the cell: somatic cell gene therapy and the germline gene therapy. In somatic cell gene therapy, the therapeutic genes transferred into somatic cells. So examples are bone marrow cells, blood cells, skin cells, etc. In germline gene therapy, therapeutic genes transferred into the germ cells, genes introduced into eggs and sperms. Okay. Now, somatic cell gene therapy will not be inherited in later on generation, but in germline therapy it is heritable and passed on to the later generation. Somatic cell gene therapy at present all research is directed to correct the genetic defect in the somatic cell. अभी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो बहुत सारे रिसर्च जो है वो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में किए जा रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट, बट ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस और टेक्निकल रीजन और एथिकल इश्यूज इट इज नॉट बीइंग अटेम्प्टेड. जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है उसको बहुत सारे एथिकल इश्यूज के कारण अभी एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है. Now, germline gene therapy. As we all know, germline gene therapy is doing or is performed in germ cells like sperm cell and the egg cell. So it result the permanent changes. Permanent changes मिलता है, heritable changes होते हैं, and they having the potential for offering a permanent therapeutic effect for all who
इनहेरिट द टारगेट जीन। उन सभी जनरेशन में जिनमें भी ये टारगेट जीन होगा, उन सभी में ये हमें परमानेंट चेंज जो है वो दिखाता है। ओके, बट इट रेजेस सम कंट्रोवर्सी। सम पीपल व्यू दिस type of therapy as unnatural and liken it to playing God. Others have concern about the technical aspects. तो कुछ लोगों का यह मानना है कि यह जो जर्मलाइन जीन थेरेपी है यह अननेचुरल है और वो इसे एक तरह का प्रकृति के साथ खिलवाड़ समझते हैं। अर्थात इसमें हम हमारे जो नेचुरल जेनेटिक जो हमारा मेकअप है उसमें चेंज ला रहे हैं या उसे हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसे ये एथिक्स के अनुसार सही नहीं मानते। बट सम ऑल्सो हैव द अदर टेक्निकल एस्पेक्ट। कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की वजह से भी इसे काफी अभी आगे रिसर्च की जरूरत है इसमें, कि बहुत सारे लोगों का जो व्यू है ये इसमें काफी कंट्रोवर्शियल है। Now the somatic gene therapy, it affects only the targeted cells in the patient and is not passed to the future generation. Short-lived because the cells of most tissues ultimately die and are replaced by the new cells. यहाँ सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में हम टारगेट सेल्स पर ही केवल अफेक्ट करते हैं या जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और चूंकि हम सोमैटिक सेल पर करते हैं इसलिए यह फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन नहीं होता। और चूंकि ये सारे सोमैटिक सेल में लगातार जो है मल्टीप्लिकेशन होता जाता है और जो ये न्यू सेल से ये रिप्लेस होते जाते हैं, सो इनका जो अफेक्ट है ये काफी परमानेंट जो चेंज है वो नहीं होता। It is appropriate and acceptable for many disorders including cystic fibrosis, muscular dystrophy and certain infectious diseases also. Now the types of somatic gene therapy. There are two types of somatic gene therapy या two approaches भी हम कह सकते हैं, ex vivo somatic gene therapy and in vivo somatic gene therapy. In ex vivo, cells are modified outside the body and then transplanted back in again. Hence, it is called ex vivo because the cells are treated outside the body. Okay, but in vivo, the genes are changed in cells when the cells are still in the body. So, it is called the in vivo because the genes are transferred to cell inside the patient's body. बाहर कल्चर ना करके हम उसे पेशेंट के बॉडी में ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसलिए हम इस अप्रोच को इन वाइवो कहते हैं। लेकिन जब ऐसे अप्रोच जहां पर हम पहले सेल्स को जो भी जिस पेशेंट में हमें ट्रीटमेंट करना है उसके सेल्स को हम पहले आइसोलेट करते हैं, उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, देन उसको अगेन रीट्रांसप्लांट करते हैं, तो इस तरह का जो अप्रोच है वो कहलाता है एक्स वाइवो। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन वाइवो जीन थेरेपी एंड एक्स वाइवो जीन थेरेपी। किस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं इन वाइवो, जैसा कि अभी मैंने बताया, इन वाइवो में हम डायरेक्टली बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट करा रहे हैं, पेशेंट के बॉडी के अंदर। ओके, दिस इज द थेरेप्यूटिक जीन जिसे कि वायरल वेक्टर सिस्टम के थ्रू पैकेजिंग करके यहाँ पर हमने उसे इंजेक्ट कराया इनटू द पेशेंट बॉडी, जहां पर वो अपना फंक्शन जो है वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो करेगा, सेल को मॉडिफाई करेगा एंड देन नॉर्मल जो प्रोटीन है वो प्रोडक्शन करेगा। ओके, नॉर्मल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो होने लगेगा। बट हियर इन केस ऑफ द एक्स वाइवो जीन थेरेपी, जो एक्स वाइवो जीन थेरेपी है वहां पर हम देखते हैं कि हम थेरेप्यूटिक जीन्स को जब हम वायरल वेक्टर के साथ पैकिंग करके जब हमें इसे इंट्रोड्यूस कराना है तो हम डायरेक्टली उसे पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट नहीं कराते। सबसे पहले उस पेशेंट का हम स्टेम सेल आइसोलेट कर रहे हैं, उसके बाद उसे हम लेबोरेटरी में थेरेप्यूटिक जीन्स जो कि हमने पैकेज किया है इसको हम इस सेल्स में इन्फेक्ट करा रहे हैं। ओके, देन आफ्टर दैट दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल जब हम उसको कल्चर करते हैं, ग्रो कराते हैं, उसके बाद जो हमारे मॉडिफाइड सेल हैं जिसमें कि हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस कराया है
Now this genetically modified cells are then reintroduced into the patient body. So यहाँ हम देख रहे हैं कि it is the directly introduced, okay, in vivo, in case of in vivo gene therapy. But in ex vivo gene therapy पहले हमने सेल आइसोलेट किया, उसे कल्चर किया, उसे फिर उसे मॉडिफाइड किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया विद द नॉर्मल फंक्शनल जीन, एंड देन वी रीइंट्रोड्यूस इन द पेशेंट बॉडी. सो दिस इज द एक्स वाइवो अप्रोच. नाउ इन वाइवो जीन थेरेपी, अभी जो मैंने बात की है, it is the direct delivery of the therapeutic gene into the target cell into patient body. It is carried out by the viral or non-viral vector system, but it only possible where individual cells cannot be cultured in vitro in sufficient number like brain cells, and it is also necessary for in vivo gene transfer when cultured cell cannot be reimplanted in patient effectively. ओके, सो इन वाइवो जीन थेरेपी हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इंडिविजुअल सेल को हम बाहर कल्चर नहीं कर सकते सफिशिएंट अमाउंट में, या फिर हम उसे दोबारा से रीइम्प्लांट नहीं कर पाते इफेक्टिवली पेशेंट के बॉडी के अंदर, तब हम इन केसेस में इन वाइवो जीन थेरेपी को अप्लाई करते हैं. Now this is the example of in vivo gene therapy for the treatment of the cystic fibrosis. ये एक डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम इन वाइवो जीन थेरेपी को यूज कर सकते हैं. In the patient which is suffering from cystic fibrosis, a protein called cystic fibrosis transmembrane regulator protein is absent due to the gene defect. Gene defect की वजह से ये प्रोटीन जो है उसमें absent होता है, and because of absence of this CFTR, the chloride ion concentrate within the cell and it draws water from the surroundings. So it lead the accumulation of sticky mucus in respiratory tract and lungs. So by using this in vivo gene therapy, we can treat this disorder by using this adenovirus vector. Okay, यहाँ पर हम वेक्टर यूज करते हैं adenovirus. Now this is the diagram which shows the how we can use in vivo gene therapy for the treatment of the cystic fibrosis. यहाँ पर हम वायरल वेक्टर सिस्टम के द्वारा इन वाइवो जीन थेरेपी के द्वारा हम डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन जीन विच इज क्लोन्ड इन द बैक्टीरिया. जो नॉर्मल ह्यूमन जीन है उससे पहले क्लोन कर लिया गया बैक्टीरियल सेल में. नाउ दिस इज द वायरल वेक्टर, ओके, जिसके साथ हमने इसे पैकिंग कर लिया है इस जीन को, इसके साथ हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराकर. नाउ दिस नॉर्मल जीन DNA सीक्वेंस इंसर्टेड इनटू द हार्मलेस वायरस दैट इज एडिनो एसोसिएटेड वायरस, and this virus is dripped into the lung through thin tube inserted in the nose. तो चूंकि इन वाइवो है तो हम इसे डायरेक्टली पेशेंट में इंजेक्ट करा रहे हैं. यहाँ पर हम पहले कल्चर नहीं कर रहे हैं सेल्स को, हम डायरेक्टली यहाँ पर इसे नोज में ट्यूब के थ्रू इसको एंटर करा रहे हैं, एंड यहाँ पर सीधा ये टारगेट जो सेल है डेट इज द लंग है ना, लंग में ये जा रहा है, एंड नाउ दिस एंटर इन द लंग सेल न्यूक्लियस में जा रहा है, and this lung cell nucleus now having the normal gene which is inserted. So this lung cell now having the normal gene or DNA sequence which is inserted into a lung cell DNA by the virus. Okay, so this cells now having the normal functioning gene. इस तरह से normal functioning gene जो है इनका expression इनमें होने लगता है. So this is the in vivo gene therapy approach through the viral vector system. Now ex vivo gene therapy. इसके भी कुछ steps हैं जिनमें सबसे पहला है isolate the cells with genetic defect from a patient, जिसमें हम सेल को पहले isolation करते हैं, then उन्हें grow कराया जाता है, culture किया जाता है, then introduce the therapeutic gene to correct the gene defect, फिर उसमें हम normal gene को introduce कराते हैं. Now select the genetically corrected cell. अब उनमें से हम उन सेल्स को स्क्रीन आउट करते हैं जिनमें कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है.
ओके, एंड देन ट्रांसप्लांट दिस मॉडिफाइड सेल टू द पेशेंट्स अगेन। ओके, फिर अब उन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम पेशेंट के बॉडी में री इम्प्लांट करते हैं। Now this is the example of ex vivo gene therapy. It is first used for the treatment to correct the deficiency of enzyme, that is adenosine deaminase, ADA जो मैंने अभी बात की थी, which is first सबसे पहले जिसे यूज किया गया था 4-year-old गर्ल अस्तानी डिसिल्वा, अशांति डिसिल्वा में। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम SID, that is severe combined immunodeficiency disease, and it is caused due to the defect in the gene that is code for the ADA enzyme, and this ADA enzyme is very necessary enzyme. In the deficiency of ADA there is an accumulation of the deoxyadenosine which destroy the T lymphocytes, okay, and disrupt the immunity. So this is the example of ex vivo gene therapy. किस तरह से इसे SID जो डिसीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया है। सो बैक्टीरिया हैविंग द नॉर्मली जो ह्यूमन एडीए जीन है उसमें इसे क्लोन किया गया ह्यूमन एडीए जीन को। नाउ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस जेनेटिकली डिसेबल्ड जो हमने रेट्रोवायरस लिया है। तो जो हम वायरस वेक्टर भी ले रहे हैं तो उसे पहले हम वेक्टर के फॉर्म में यूज करने से पहले उसे हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज कॉल्ड द जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस, ताकि ये हमारे लिए हार्मफुल ना रहे। ओके, नाउ जब इसमें हम इस ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, देन अब हमें चाहिए वो सेल्स जिसको हमें ट्रीटमेंट देना है। सो द टी सेल्स विद डिसेबल्ड एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द सीड पेशेंट। तो हमने पहले ही आइसोलेशन कर लिया है सीड पेशेंट के टी सेल्स का। देन रेट्रोवायरस इन्फेक्ट दिस टी सेल जिसमें हमने ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस कराया, उस रेट्रोवायरस से हम इसमें इन्फेक्शन करा रहे हैं, एंड देन दिस वायरस ट्रांसफर द नॉर्मल एडीए जीन टू द सेल्स। सो हियर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल, ये ब्लू कलर में आपको नॉर्मल जीन जो है वो दिखाई दे रहा है। नाउ अगेन दिस सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर, फिर से हम इसे कल्चर करते हैं और इसमें कंफर्म किया जाता है कि एक्चुअली दे हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, हमारे सेल्स जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। देन आफ्टर दैट कंफर्मेशन, देन दिस सेल्स जो हमारे एक्चुअली में जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं उन्हें हम फिर से री इम्प्लांट करते हैं इन द पेशेंट्स बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल एडीए। Okay, so this is the ex vivo gene therapy approach for treatment of the SID. Now, target sites for gene therapy. There are various target cells for different types of diseases. अलग अलग diseases के लिए हम अलग अलग target cells को gene therapy के लिए use करते हैं। वहां पर हम उस therapeutic gene को introduce कराते हैं, वहां पर वो deliver किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर्स के लिए ट्यूमर सेल्स को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, ब्लड प्रोजिनेटर सेल्स, टी सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मसल सेल्स को यूज किया जाता है। इनहेरिटेड जो मोनोजेनिक डिसीजेज हैं उनके लिए मैक्रोफेजेस, टी सेल, ब्लड प्रोजिनेटर सेल, हेपेटोसाइट, मसल सेल्स को यूज किया जाता है। फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेज टी सेल, ब्लड प्रोजिनेटर सेल, एपीसी, मसल सेल्स को यूज किया जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के लिए एंडोथेलियल सेल, मसल सेल्स को यूज किया जाता है। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए साइनोवियल लाइनिंग सेल्स जो हैं उनको हम यूज कर सकते हैं एज द टारगेट सेल्स। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द जीन डिलीवरी। Okay, now gene delivery is a very necessary step in the gene therapy for introducing or silencing of a gene to promote the therapeutic outcome. Okay, so for gene delivery we have to use some vectors, जिसके लिए हमें vectors की जरूरत पड़ती है ताकि हम उस therapeutic gene को वहां तक पहुंचा सकें या वहां introduce करा सकें। So there are different types of vectors which we can use in gene therapy approaches. Now there are two types of vector, viral vector and the non-viral vectors. So viral vector में हम दे सकते हैं, there are different examples of viral vectors. Viral vectors में हम देखते हैं रेट्रोवायरसेस हैं, एडिनोवायरसेस हैं,
एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं, हर्प सिंप्लेक्स वायरसेस हैं। तो एज वी ऑल नो वायरसेस आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए इन्हें वायरल वेक्टर के रूप में यूज करने से पहले इन्हें हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम इसे जेनेटिकली डिसेबल्ड फॉर्म में यूज करें फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द थेरेप्यूटिक जीन्स. So retroviruses are the RNA viruses that carry the reverse transcriptase enzyme, okay, that transcribe the viral genetic material into the double stranded DNA intermediate. Retroviruses are generally used for the ex vivo gene therapy के लिए इसे यूज किया जाता है as they are unable to efficiently infect the non-dividing cells. Okay, now adenoviruses are the DNA viruses that infect a cell, lose their protein code and transfer DNA into the nucleus where it is transcribed. Now adeno-associated viruses, they show low immunogenicity and have no known pathogenicity and target the non-proliferating cells. Okay, now this is herp simplex virus, या इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं HSV. Okay, they are also a DNA virus having the interesting property like ability to remain latent in tissue and to be reactivated at the original site of infection. So HSV virus vectors जो हैं, they can accommodate large piece of foreign DNA and transfer gene rapidly and efficiently. Now the non-viral vector. नॉन-वायरल वेक्टर्स में हम अदर देन जो वायरल वेक्टर्स हैं उनके जगह जितने भी दूसरे वेक्टर्स हैं उन सभी को हम इस क्लास में रख सकते हैं नॉन वायरल वेक्टर्स में. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीन ट्रांसफर थ्रू वायरल वेक्टर. अगर जीन ट्रांसफर हम वायरल वेक्टर के थ्रू कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन. ओके, बट when gene transfer is doing through the non-viral vector, okay, non-viral vector के through अगर हम gene transfer कर रहे हैं then the process is called the transfection. Okay, so ये जो process है non-viral vector के through इसे हम transfection कहते हैं और viral vector के through हो रही है तो transduction कहते हैं. So here are the example of non-viral vector. naturally occurring compound के through हो सकता है. It is the simplest method of injecting the naked DNA into the human body, and it was used for injecting intramuscular, which is secured and relatively low level of expression, but it is sufficient for use. Now enhanced delivery by the physical method. कुछ ऐसे physical transfection method हैं जिनको हम therapeutic genes के introduction के लिए हम use करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल मेथड्स में हम देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बैलिस्टिक पार्टिकल मेथड एक्सेट्रा. और समटाइम्स हम कुछ केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड भी यूज करते हैं जिसमें आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट मेथड, लिपिड कॉम्प्लेक्स मेथड जिसे हम लाइपोसोम्स मेथड कहते हैं या पॉलीप्लेक्स मेथड्स. सो दे आर द केमिकल मेथड्स. नाउ दिस इज द अगेन यहाँ पर हमने नॉन वायरल जीन डिलीवरी जो मेथड्स है उसके कुछ एग्जांपल्स बताए हैं. फिजिकल मेथड में हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन, अल्ट्रासाउंड, हाइड्रोडायनेमिक थेरेपी. केमिकल में हम पॉलीमर, लाइपोसोम, लाइपोप्लेक्सिस, पॉलीप्लेक्सिस मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस इज द नॉन वायरल वेक्टर डिलीवरी सिस्टम. एक तरह का सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया है कि हाउ वी कैन यूज द नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम, क्योंकि इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखे थे हमने उसमें जैसे हमने सीट के ट्रीटमेंट में या सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में जो एग्जाम्पल लिए थे वहां पर हमने देखा था वायरल वेक्टर के यूज के थ्रू हमने उसे ट्रीटमेंट किया गया है. लेकिन नॉन वायरल वेक्टर में किस तरह से उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वायरल वेक्टर डिलीवरी सिस्टम जहां पर हम देख रहे हैं दिस इज द पॉलीकेटायनिक लिगेंड, या जिसमें हम लिपिड भी यूज कर सकते हैं या कुछ पॉलीमर्स यूज कर सकते हैं. एंड व्हेन इट बाइंड विथ
निगेटिवली चार्ज डीएनए, दोनों का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो देन दे फॉर्म द लाइपोप्लेक्स और द पॉलीप्लेक्सेस, ओके, विच आर देन अपटेकन बाय द सेल के द्वारा इनका अपटेक हो जाता है, इस तरह से रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और इनका एंडोसाइटोसिस हो रहा है। एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये एंडोसोम के फॉर्म में सेल के अंदर एंटर करते हैं एंड देन जब इनका लाइसिस होता है तो ये रिलीज करते हैं उस डीएनए को एंड देन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन द थेरेप्यूटिक जो प्रोटीन है उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ नॉन वायरल वेक्टर डिलीवरी सिस्टम जिसके थ्रू हम थेरेप्यूटिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। Now these are the some advantage and disadvantages of different vector gene delivery system, जिसमें कि वायरल वेक्टर भी हो सकते हैं, नॉन वायरल वेक्टर भी हो सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं नॉर्मल जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला है डेट इज रेट्रोवायरस वेक्टर, इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट डीएनए, इसका एडवांटेज जो है, एंड ऑल वायरल जीन्स रिमूव्ड एंड रिलेटिवली इट इज सेफ, ओके, बट डिसएडवांटेज है सेमी रैंडम इंटीग्रेशन एंड ट्रांसडक्शन रिक्वायर सेल डिवीजन एंड रिलेटिवली लो टिटायर। इसी तरह एडिनोवायरस के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें नॉन वायरल वेक्टर की तो हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं लाइपोसोम मेथड। सो इसका एडवांटेज है एब्सेंस ऑफ वायरल कंपोनेंट एंड लैक ऑफ प्रीवियस इम्यून रिकॉग्निशन, जिसमें कि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो कम होती है, ओके, एंड डिसएडवांटेज है इनसफिशिएंट जीन ट्रांसफर इनटू द न्यूक्लियस, बहुत अच्छे से एफिशिएंटली जीन ट्रांसफर ये नहीं कर पाते, एंड लैक ऑफ टिश्यू टारगेटिंग, स्पेसिफिक टिश्यू में टारगेट करने की भी प्रॉब्लम आती है, ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ हर थेरेपी में हम देखते हैं या हर टेक्निक के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज। तो इन जीन थेरेपी देयर इज आल्सो सम लिमिटेशंस, इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे इम्यून रिस्पॉन्स टू द ट्रांसफर्ड जीन स्टिमुलेट अ पोटेंशियल रिस्क टू जीन थेरेपी। Viruses used as the vector for gene transfer may cause toxicity, immune responses, inflammatory reactions in the host cell. Okay, disorders caused by the defect in multiple genes cannot be treated effectively by using the gene therapy. So these are the some limitation, जिसमें कि जो कॉमन लिमिटेशन या सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है दैट इज अगर कोई डिसऑर्डर मल्टीपल जीन डिफेक्ट की वजह से हो रहा है तो हम उसे जीन थेरेपी के द्वारा एफिशिएंटली क्योर नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो हम वायरस वेक्टर यूज करते हैं तो उनके भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, या कुछ इम्यून रिस्पॉन्स ये बॉडी में जनरेट कर सकते हैं, कुछ समटाइम्स टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो दीज आर दी सम ड्रॉबैक ऑफ जीन थेरेपी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ जीन थेरेपी, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये जीन थेरेपी बहुत बड़ा हमारे लिए एक बून है, वरदान है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, जो ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है बहुत सालों पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, तो उन बीमारियों का इलाज हम जीन थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। सो इट गिव अ होप ऑफ हेल्दी लाइफ टू द कैंसर पेशेंट्स, उनके लिए कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही बड़ा ये वरदान है। जीन थेरेपी हैज द पोटेंशियल टू एलिमिनेट एंड टू प्रिवेंट द हेरिडिटरी डिसीज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, एडीएस फॉर सर्टेन, सो इट कुड सेव द मेनी लाइव्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी तक हमारे पास नहीं था, उन्हें भी हम जीन थेरेपी के द्वारा आसानी से क्योर कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। नाउ कंक्लूजन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन थेरेपी? थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो जीन थेरेपी इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द जेनेटिक डिसीजेस, but it has some complexities also. At its current stage, it is not accessible to most people due to its huge cost. एक तो इसमें खर्च ज्यादा होता है, इसीलिए जो सामान्य व्यक्ति हैं वो इन्हें आसानी से यूज नहीं कर पाते, यूज करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा
gene therapy is good for only single gene defect, okay, but more research should be carried out for the multiple gene defect. सिंगल जीन डिफेक्ट से होने वाले जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके लिए काफी अच्छा है ये ट्रीटमेंट, बट अगर वो डिफेक्ट मल्टीपल जीन डिफेक्ट की वजह से वो डिसीज हो रही है तो अभी भी उन क्षेत्रों में रिसर्च की आवश्यकता है. न्यू एंड इफेक्टिव जीन कैरियर नीड टू बी डेवलप्ड by the further research to increase the target specificity and decrease the harm to adjacent healthy tissues. Okay, so कुछ नए कैरियर और इफेक्टिव कैरियर की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो हम वायरल वेक्टर्स यूज करते हैं वो काफी हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काफी टॉक्सिक भी हो सकते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं. सो इसलिए हमें कुछ नए कैरियर में डेवलप करने में की जरूरत है, और ताकि हम स्पेसिफिक टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू को ही हम यूज कर सकें, और जो उनके एडजेसेंट हेल्दी टिश्यू हैं उन पर ये कोई अपना हार्मफुल इफेक्ट ना डाले. जीन थेरेपी हैव द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. तो मेडिसिन के क्षेत्र में जीन थेरेपी ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है, जिसके द्वारा कई सारे जो जेनेटिक डिसीजेज हैं आज उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाया है. Now these are the references which I have used for my slide preparation. Thank you so much for watching and listening.